So, hey everyone, welcome or welcome back to my channel. So, today's topic of discussion is very interesting because in today's life we are so busy and so fed up with our all day chaos and your like daily life things that we just don't get time for ourselves, to get time for our hobbies, to follow our passion and all of that. Very lucky people in this world I think got that time to just go and enjoy their hobbies, and I think that's not a good thing. You just don't get that time to enjoy yourself, and you just don't get that leisure time a lot during this whole chaos of this world of school or your college or your job, that you just don't get that time, that leisure time to enjoy yourself, to just feel that comfortableness, to just do something which you love. And in that case, my thing is reading. And to make it easier, I just take out some ways, and just I am suggesting you that some of these ways to you also today, so to make your life a way more easy. Everyone I think just want to read, just want to start reading, or they were like an avid reader at some point of their life, but now they just don't get that time to enjoy a book. But because they don't have that much time in their life to read a book, to complete that, but they also want that happiness, that excitement of reading a book, that eagerness to read or to know a plot twist, or just reading about a character to feel just connected or emotional or something like that. But they just don't get that much time to just feel it or to just read about it. So I am here for you today. I am going to recommend something very good, something very exciting, something very engageable, audiobooks which I think you will listen and you will again fall in love with reading. And if you are a person who just a non-reader and have read only a bunch of books, which I think I considering your school books, either NCRT, Tempest, Merchant of Venice, all that drama, prose, poetry you have read in your school, all that just make you think that books are boring, reading is boring. It's not, and you just want to dip your toes into that world of reading, then you are at the right place, because today I am telling you 5 audiobooks that you will just going to love to listen, and you will be so engaged that after that you just want to swim around this ocean of books. So let's start with the recommendations. The first audiobook, I think, which is also my first audiobook which I have listened to, just because I was in a reading slump and I just want to try something new, and I just came to this book review and want to listen it as a audio book because it's very interesting. The genre of the book is very interesting. The genre of the book is mainly We Used to Live Here by Marcus Clever, and the genre is, I think, by seeing the book on the screen you might know that it's horror suspense. And if it's horror, I'm going to love it because all the classic movies I have watched so many times and I love them. So I just very excited to reading to listen this book, because in the case of horror genre, you just, I think in case of reading it physically, it is also a good thing. Reading physical books is just amazing. Nothing in this world, disclaimer for this video, can't beat this physical book reading, because it's the best thing. That smelling of new books, that feel of just holding a book is just at another level. Annotating it, tabbing it, and all the other things is just incredible and special. But if you are one who just want to read a book but also do some work of your like household work or your project or anything like that, and you are just getting back towards your home, but you just want to not so bore kind of thing, and you're so fed up and exhausted by your day, but you just want to listen something engaging which just make your mind like this in 2 seconds, so like excited and so like I what I can want to say, like बिल्कुल जगा दे आपको तो, that's the kind of book is it is We Used to Live Here by Marcus Clever. It is a book, it is a story of two couple, Charlie and Eve, I remember the character name, and they are both living in this new house. And one day, this family in a snowstorm, they just came there and said, I think we used to live here at some point of time of for our life, and I just want our children to look into the house and have a tour kind of thing. And Eve, being a nice girl, just be nice to everyone, she just
हाँ कह देती है उनको। और उसके बाद तो आपको पता ही है कि ऐसे बिन मुलायम मेहमान कुछ भी अच्छा छोड़ के नहीं जाते। उसके बाद जो ट्विस्ट टर्न्स इस बुक में आपको देखने को मिलेंगे, ये तो बुक की बात हो गई। बुक तो 5 स्टार है ही, बट इसका नरेशन, द ऑडियो बुक नरेशन इज incredible, like that spookiness and that thrilling part of the horror genre which you just see in the movie, you can feel it. Like, for example, if the character definitely is going to be like little bit afraid at some point and little bit scared and little bit anxious about the things which are going around in her life, definitely after some mess going on, तो वो आपको बहुत ही अच्छे से इसमें फील होगा। एंड आई एम लिटरली 100% श्योर ऑफ दैट यू आर गोइंग टू लव इट। एंड आई थिंक अगर आपकी फर्स्ट ऑडियो बुक आप ट्राई करना चाहते हैं, यू कैन ट्राई इट एज योर फर्स्ट ऑडियो बुक, बिकॉज ये एंगेजिंग है, ये थ्रिलिंग है, और इसका नरेशन बहुत अच्छा है। यू विल गोइंग टू लव इट। आई थिंक दैट्स द फर्स्ट एंड मोस्ट लाइक रिकमेंडेड बुक बाय मी, एंड इट्स अ हॉरर जॉनरा। और क्या चाहिए आपको? हाँ, बस एक चीज़ की ओपन एंडेड है, तो अगर आपको ओपन एंडेड बुक्स नहीं पसंद है तो प्लीज़, दिस इज़ द डिस्क्लेमर। और अगर आपको ऐसा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आई थिंक आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप इस बुक और इस ऑडियो बुक को हमेशा याद रखेंगे, और थैंक यू बाद में मुझे बोल दीजिएगा। द नेक्स्ट बुक इज़ अगेन, क्योंकि मैं ऑडियो बुक में आई थिंक, अगर आप ऑडियो बुक्स इफ़ के जॉन मतलब उसमें वर्ल्ड में अपना टो डिप कर रहे हैं और आपको ये लगता है कि अगर मैं ऑडियो बुक सुनना शुरू करता हूँ तो आई थिंक आपको हैवी फैंटेसी या फिक्शन से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा बोर करेगा। फैंटेसी में बहुत वर्ल्ड बिल्डिंग होती है, और अगर आप उसे ऑडियो बुक पे 1x 2 आई थिंक 1x.9x स्पीड पे सुन रहे हैं तो आपको बहुत बोर करता है, क्योंकि वर्ल्ड बिल्डिंग किसी को पसंद नहीं होती है। उसको विजुअली आप पढ़ रहे होते हैं तब भी आपको मज़ा नहीं आता, और सुनने में तो और बोरिंग लगती है। तो आई थिंक आप उसे, और या फिक्शन बुक्स जिसमें कैरेक्टर ओरिएंटेड बुक्स हैं और वो बहुत ज़्यादा स्लो मूव कर रही हैं, तो आप बोर हो जाएंगे और आप उस ऑडियो बुक को ड्रॉप कर देंगे, जो मैंने कई बार किया है। सो आई एम रिकमेंडिंग यू द बेस्ट वंस, एंड द नेक्स्ट वन इज़ अगेन अ थ्रिलर। द बुक इज़ हाउस मेड बाय फ्रीडा मैकफैडन। दिस द बुक, आई थिंक आई जस्ट गॉट अ लॉट ऑफ मिक्सड रिव्यूज़ अबाउट दिस बुक, बिकॉज सबने कहा ये बहुत प्रिडिक्टेबल है, इसका प्लॉट ट्विस्ट सभी गेस कर लेते हैं। भाई साहब मैं नहीं गेस कर पाया, शायद मैं ऑडियो बुक में ही इतना खो गया था, जो इस बात को एक वो दे देती है कि इसका भी नरेशन बहुत अच्छा है। द ऑडियो बुक नरेशन इज़ वेरी गुड एंड इट इज़ इनक्रेडिबल। लाइक आई एम रिकमेंडिंग, जो भी मैं बुक आपको बता रहा हूँ ऑडियो बुक, वो सारी बुक्स ऐसी हैं जिन्हें आप पढ़ के ये पढ़ मतलब सुन के या आप सोचेंगे कि इनका नरेशन बहुत अच्छा है। जो वो बुक आपको बताना चाहती है वो ऑडियो बुक उस तरीके से उसे आपको शो करेगी। एंड दिस बुक द हाउसमेड इज़ अगेन अ वेरी गुड audio book to listen. And if you just want to read a Frida McFadden book and you just got a lot of mixed review कि शायद वो predictable हो या शायद उसका plot twist ना हो, तो आप एक इसे ट्राई दे सकते हैं। And these all audio books which I am suggesting are on the Audible platform which is by Amazon. It's not sponsored by the way, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। कुछ ऑडियो बुक्स उसमें सच में अच्छी होती हैं, कुछ का नरेशन नहीं अच्छा होता, इसलिए मैं सारी बुक्स को ऑडियो बुक के फॉर्म में प्रेफर भी नहीं करता। फिजिकल रीडिंग इज़ द बेस्ट टिल नाउ, आई मेरे लिए तो वही है। लेकिन फिर भी कुछ बुक्स के लिए ऑडियो बुक्स का केस बहुत अच्छा होता है। जो जो जितनी भी थ्रिलर्स होती हैं उनके केस में आई थिंक ऑडियो बुक्स आर द बेस्ट थिंग यू कैन हैव। सो द हाउसमेड, इफ़ यू जस्ट डोंट नो कि किसकी स्टोरी है, इट्स अ स्टोरी ऑफ अ हाउसमेड हु जस्ट गॉट इन अ हाउस वेयर a couple live with their child and all is just going on well, but someday all the messed up secrets are starting to come out. That's all the story I want to going to tell you about. दैट्स ऑल दिस इज़ अबाउट कि इसमें सीक्रेट्स बाहर आएंगे, जो आप पढ़ेंगे, जो आप सुनेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इस बुक में बहुत ड्रामा है, और ऑडियो बुक के फॉर्म में तो ये ड्रामा और बहुत ही मज़ा आता है। लाइक द कैरेक्टर ऑफ नीना इन दिस बुक, जिस ड्रामा के साथ उसे नरेट किया गया है, आई थिंक इट्स द बेस्ट thing you can listen to. So just go and listen it. The next book is again by Frida McFadden, that is Never Lie by Frida McFadden, and it is also a good book. It's a story of one couple basically who just want to buy a new house. So they just want to buy a new house, they just go and look after into some house in a snowstorm, and they just got stuck there. And so at night they are just roaming around and in there and out in that house, and then the secrets are कमिंग आउट ऑफ दैट प्लेस। जिसकी भी वो जगह थी वहाँ के सीक्रेट्स बाहर आने लगते हैं और सारी चीज़ें मिक्सड अप हो जाती हैं। दैट्स ऑल द प्रेमिस आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट बुक। इन दिस केस ऑल्सो द नरेशन इज़ वेरी गुड। ऑल द थिंग्स विच लाइक थ्रिलिंग पार्ट, और जितना भी वो थोड़ा सा डराने, लाइक थ्रिलिंग डराने वाला नहीं, दैट
थोड़ा सा वो एंशियस पार्ट होता है जिसमें कुछ हो रहा है जिसको हमें पता समझ में नहीं आ रहा, वो बहुत अच्छे से नरेटेड है और आई थिंक आप इसे इंजॉय करेंगे। द नेक्स्ट बुक, आई थिंक मैंने जो 4 बुक्स आपको बताई हैं उनमें 3, सॉरी, ये चौथी बुक का नरेशन सबसे अच्छा मैं कहूँगा, बिकॉज आई थिंक जिस चीज़ से, जिस टॉपिक से ये बुक डील करती है, आई थिंक उस बेस पे इसका नरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आउटस्टैंडिंग, लाइक आउटस्टैंडिंग, खड़ा हो जाना चाहिए बट मैं खड़ा होऊंगा नहीं, बिकॉज द बुक इज स्ट्रेंज सैली डायमंड बाय, आई डोंट रिमेंबर द नेम, सॉरी ऑथर नेम मुझे नहीं याद आ रहा है, स्ट्रेंज सैली डायमंड। एंड इसका नरेशन मैं क्यों कह रहा हूँ कि इतना अच्छा है, क्योंकि जो बुक है उसमें, मैं पहले से ट्रिगर वार्निंग दे देता हूँ, it has a lot of physical abuse, child abuse, and a lot of things which I think you just don't want to read in your books, and that listening to that part बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लाइक आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि कोई डोमेस्टिक वायलेंस या फिजिकल अब्यूज़ का सीन चल रहा है या वो हो गया, तो उसके बाद जैसे हम कैरेक्टर्स जब नॉर्मल फिजिकल बुक्स में पढ़ते हैं, हम उन्हें रीड करें, कितना ही हम उसे इमेजिन कर सकते हैं कि वो कैसे बोल रहा होगा, कैसी उसकी वॉइस होगी, या किस तरह से उसकी कंडीशन हो गई होगी उस वॉइस में, वो कैसे बोल रहा होगा, वो अपने उसमें बोलता है तो हमें उतना समझ में नहीं आता। बट इस बुक के नरेशन में वो उसी तरह से नरेटेड है, लाइक उन सब चीज़ों के बाद जिस तरीके की श्रिल सी और हाई पिच्ड वॉइस में उसे नरेट किया गया है, वो क्राइंग सीन जिसमें वो रो रही है और रो के वो एक बोलने का जो वो होता है कि वो एक ह्यूमन जिस तरह से बोलता है, उसमें बुक में कितना ही इमेजिन करके पढ़ सकते हैं, मुझे नहीं, इतनी इमेजिनेशन मेरी तो अच्छी नहीं है। और जब उसे आप सुनते हैं, आई थिंक इट्स गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट इन योर लाइफ, एंड इट्स बेसिकली अ स्टोरी ऑफ स्ट्रेंज सैली डायमंड, जिसके पापा ने उससे कहा कि एक दिन जोक में कि मैं मर जाऊं तो मुझे डस्टबिन में फेंक देना, और लिटरली वो लड़की उन्हें डस्टबिन में फेंक देती है। आयल, तो वो उन्हें डस्टबिन में फेंक देती है आफ्टर हिज डेथ डेफिनेटली। और वही उसकी स्टोरी है स्ट्रेंज सैली डायमंड। बट इसके साथ इस बुक में बहुत कुछ है, कुछ पास्ट सीन्स, कुछ फ्यूचर सीन्स, कुछ प्रेजेंट सीन्स, विच आई थिंक यू विल गोइंग टू लव देम ऑल। आई थिंक एक थ्रिलर के उससे बहुत ज़्यादा है, और इसका नरेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा, स्पेशली दैट डोमेस्टिक वायलेंस सीन इतना ज़्यादा, वो फिजिकल अब्यूज़ के उसमें इतना ज़्यादा हाई अप हो गया था कि मुझे एक टाइम के लिए ऑडियो बुक को पॉज करना पड़ा, क्योंकि वो सुना नहीं जाता। ऑफ कोर्स आप किसी इंसान को ऐसे कैसे सुन सकते हैं, तो आई थिंक यू विल गोइंग टू लव इट। अगर आपको डार्क थ्रिलर्स पसंद हैं तो आई थिंक यू विल गोइंग टू लव इट। द लास्ट वन, द बुक, द ओनली फिक्शन बुक जो मैंने कंप्लीट करी ऑडियो बुक के फॉर्म में, क्योंकि ऑफकोर्स कुछ बुक्स मैंने ली हैं ऑडियो बुक के फॉर्म में, बट वो फिक्शन हैं, वो बहुत अच्छी हैं, बट मैंने उन्हें कभी पढ़ा ही नहीं, क्योंकि वो थोड़ी बोरिंग, सुना ही नहीं, और क्योंकि वो थोड़ी मुझे बोरिंग लगी, एट द एंड मुझे उनकी फ़िज़िकल कॉपीज़ ही लेनी पड़ी पढ़ने के लिए, जो बहुत अच्छा था। आई थिंक द बेस्ट डिसीजन टू रीड फिक्शन इज़ बाय योर फिज़िकल मीन्स। बट इस बुक को मैंने ऑडियो बुक के फॉर्म में सुना और मैं बिल्कुल रिग्रेट नहीं है इस डिसीजन का। द बुक इज़ द बॉय इन द स्ट्रिप्ड पजामा बाय जॉन बॉयल, आई थिंक दैट्स ऑथर नेम, आई डोंट रिमेंबर द ऑथर नेम, सॉरी अगर मैंने गलत नेम ले लिया हो या गलत प्रोनाउंस किया हो, सॉरी फॉर दैट। एंड द बुक, आई थिंक एवरी वन आउट देयर हैज़ रेड दिस बुक, और अगर शायद आपके छोटे में आपकी बुक में कोई चैप्टर भी हो, क्योंकि मेरी इंग्लिश की 8th की बुक में इसका एक चैप्टर काइंड ऑफ थिंग था, और मुझे पूरी स्टोरी जानने का, ऑफकोर्स एक बेस्ट सेलर है, सब ने इसको पढ़ रखा है। इट्स बेस्ड ऑन दैट हॉलोकॉस्ट विथ कॉन्सेंट्रेशन कैंप जो था ना, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग नाम है, सॉरी फॉर दैट। जो पूरा कॉन्सेंट्रेशन कैंप था उसकी स्टोरी है, हॉलोकॉस्ट जो हिटलर ने ज्यूज के ऊपर किया, एंड ऑल ऑफ दैट मिस्ड अप थिंग, जो इसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया है। आई थिंक अगर आप छोटे हैं, बच्चे हैं, तो आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें सीन्स बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल वे में नहीं दिखाए गए। आराम से आप इसे सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और उस चीज़ को फील कर सकते हैं कि उन लोगों ने क्या फ़ील किया होगा। और इट्स अ वेरी गुड बुक, इट्स अ वेरी 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 गुड एंड इमोशनल। द इमोशन पार्ट ऑफ इट इज़ वेरी वेल नरेटेड। जो इमोशन उसमें पोर्ट्रे करने की कोशिश करी गई है, जिस तरीके से कि किस तरह से वहाँ पे लोग परेशान हो रहे हैं, और किस तरह से इस तरफ ऑफ कोर्स वो फेंसिंग होती थी, और ऑफ कोर्स मैंने आपको स्टोरी नहीं बताई, तो ये स्टोरी है एक परिवार की जो है ब्रूनो का। आपको पूरी स्टोरी उस बच्चे 8 साल नहीं, आई थिंक ही वॉज 6 ईयर ओल्ड, 6 से 7 साल के बच्चे के पर्सपेक्टिव से आप देखते हैं, और उसकी पूरी फैमिली ऑस्विट्स मूव करती है, क्योंकि उसके पापा आर्मी
नो मेयर काइंड ऑफ समथिंग होते हैं, एंड दे जस्ट मूव टू देयर, एंड वो इस साइड ऑफ फेंस हैं और उसका एक दोस्त उस साइड ऑफ फेंस से बनता है, यानी कि जो हैं वहाँ पे बंद हैं, कैद हैं, जो भी आप कहना चाहें। और वो दोनों के बीच में फ्रेंडशिप होती है, वो कैसे डेवलप होती है, वो कैसे एक दूसरे की हेल्प करते हैं और कैसे स्टोरी मूव ऑन करती है। आपको बहुत अच्छा लगेगा। उस बीच में आप कैसे देखेंगे कि कितना डिफरेंसेस हैं, the thinking of the humanity and how brutal it can be at some point of life, तो वो आप देखेंगे, और how beautiful it is also at some point of life. So you will going to enjoy this book also. The narration is incredible, the book is incredible, it is short, I think 7 to 8 hour आप इसे ख़त्म कर लेंगे अगर आप 1x स्पीड पे सुन रहे हैं। Definitely highly recommending you all the books which I have recommended, all the 5 audio books you can finish them, आई थिंक जो उनके आवर्स हैं उससे कम ही में, क्योंकि आप उन्हें रख ही नहीं पाएंगे। एक बार आपने अपना हेडफोन कनेक्ट किया और उन्हें स्टार्ट किया, यू विल नॉट गोइंग टू पुट दैट हेडफोन डाउन, यू हैव टू फिनिश देम। और अगर मुझे इन 5 में से कोई 2-3 रिकमेंड करनी हो तो आई थिंक द बेस्ट वंस आर द व्यूज टू लिव हेयर बाय मार्कस क्लेवर, द फोर्थ वन स्ट्रेन सैली डायमंड, एंड द फिफ्थ वन द बॉय इन द स्ट्रिप्ट पजामा। प्लीज़ इन तीनों में से एटलीस्ट कोई 2 सुनिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। And if you just want to start reading and want to know what all the readers around the world just feel while reading, you just have to listen to these all audiobooks. Just go and listen them.